చు పొద్దున్నుంచి ఇప్పుడు తగ్గింది బ్రో వాన. ఇప్పుడు కొంచెం వాన దగ్గర ఎండొచ్చింది, అందుకని కెమెరా పెట్టాను. ఎందుకంటే పొద్దున్నుంచి తుప్పర్లు పడతానే ఉన్నాయి. ఎక్కడ నిన్న నైటు పలాసలో ఆగాం. పలాస అంటే ఇక్కడి నుంచి ఆల్మోస్ట్ 380 కిలోమీటర్ల ముందు ఆగాం. అసలు నిన్న నైట్ అయితే నేను కెమెరా కూడా బయటికి తీయలేకపోయాను, ఏది షెడ్లో నించొని కూడా. ఎందుకంటే వర్షం పడుతుంది, వర్షానికి తగ్గ గాలి వస్తుంది, నీళ్ళు మొత్తం పడతానే ఉన్నాయి. నాకు ఎక్కడ భయం వేస్తుందంటే కెమెరా ఎక్కడ బయటికి తీస్తే ఏదన్నా ఆల్రెడీ మొన్న కోనార్క్లో గట్టిగా వాన పడింది, వానలో రికార్డింగ్ చేసాము. కొద్దిగా ఈ స్పీకర్ మీద నీళ్ళు పని నాకు అప్పటి నుంచి ఉచ్చగారుతుంది, ఈ అమ్మాయి దెంగితే ఎర్రిపోకైపోతాం మనం అని. ఈ గోప్రోలో వచ్చిన దరిద్రం ఏంటంటే 13లో ఈ కొత్త డివైస్ ఇవ్వడం వల్ల కంప్లీట్ వాటర్ ప్రూఫ్ అనేది పోయింది. నాకు మొన్నటి నుంచి భయం వేస్తుంది, ఏమవుద్దో అని. అందుకని తీయలేదు. పూరిలో కూడా మనం అసలు ఎక్కడ కెమెరా తీయలేదు. ఫోన్లు ఇచ్చిన దగ్గర మాత్రం ఒక్క నిమిషం తీసి గుడిది రికార్డింగ్ చేసాం, కొద్దిసేపు బండిది రికార్డింగ్ చేసాము, అంతే అయిపోయింది. మళ్ళీ వాన స్టార్ట్ అయింది, తీసి లోపలేసాం. ఆ తర్వాత ఇంకెక్కడ గ్యాప్ ఇవ్వలేదు. పలాసకి ఈవినింగ్ 7 కల్లా వచ్చాము. నేనేమనుకున్నా అంటే 10 వరకు రైడ్ చేద్దాము, వైజాగ్ వెళ్ళిపోతాం. 10 అంటే ఆరామ్సే వైజాగ్లో రెస్ట్ తీసుకొని కొంచెం వైజాగ్ చూసుకొని మధ్యాహ్నం పొద్దునే 9కి 10కి అలా వైజాగ్ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతే మధ్యాహ్నానికల్లా వచ్చేయచ్చులే ఇక్కడికి అనుకున్నాను. నా దరిద్రం ఎంత బాగా ఏడ్చిందంటే అసలు నైట్ 7:30 తర్వాత అసలు వాన స్టార్ట్ అయింది. వాన ఈ ఆపోజిట్లో ఎయిర్ అసలు నా బండి స్పీడ్ 80లో ఉంది, ఆపోజిట్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ అంతే స్పీడ్లో వస్తుంది గాలి. లిటరల్లీ ఎలా అంటే నడిచి వెళ్ళేవాడు కూడా నాకంటే స్పీడ్కి వెళ్ళేలా ఉంది, అంత రేంజ్లో వస్తుంది గాలి. ఒక లారీ వెనకాల నుండి, అది కూడా ఏంటి పలాసాకు ఒక 30 కిలోమీటర్స్ ముందు నుంచి అలా స్టార్ట్ అయింది గాలి. ఇంకొక లారీ వెనకాల మెల్లిగా వచ్చాను, పలాస దాకా వచ్చాను. ఒకవేళ గాలి ఆగిపోతే స్టార్ట్ అయిపోదాంలే అనుకుని ఒక 15 నిమిషాలు వెయిట్ చేశాను, ఆగట్లేదు. ఇంక చివరికి నైట్ పలాసలోనే స్టే చేసి తర్వాత మార్నింగ్ 6కి స్టార్ట్ అయ్యాం. గూగుల్ మ్యాప్స్ అయితే నాకు మధ్యాహ్నం 3కి రీచ్ అవుతావు, ఇదేంటి రాయడ్గఢ్ మిలిటరీ హోటల్ అన్నట్టు చూపించింది. బట్ ఇప్పుడు టైం 11:45 11:50 సంథింగ్ రీచ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక 50 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉన్నాం. ఇంకో హాఫ్ అన్ అవర్. ఇప్పుడు మనం వర్షంలో కోనార్క్ టెంపుల్ దాకా వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు నిన్న పొద్దున 8కి స్టార్ట్ అయింది వర్షం, ఇంకా పడుతూనే ఉంది. బండి లగేజ్ అంతా లోపల పెట్టాం. కొద్ది వర్షానికి తడిచింది, ఆయన చూసి లోపల పెట్టుకో బాబు, ఇక్కడ ఎవరు రాడు, రెస్టారెంట్ క్లోజ్ మాది ఎలాగన్నాడు. సో మొత్తం లోపల పెట్టేసి ఇప్పుడు ఈ వర్షంలో టెంపుల్కి వెళ్ళి మళ్ళీ రిటర్న్ రావాలి. చూద్దాం ఎంత దూరం అని. ఫుల్ వర్షం సావ కొడుతున్న భయ్యా. 1 కిలోమీటర్ వచ్చాం, ఇంకో హాఫ్ కిలోమీటర్ మీ టెంపుల్ దాకా వెళ్ళడానికి గ్యాప్ లేదు. కెమెరా ఎక్కడన్నా తీద్దామన్నా గ్యాప్ లేదు. వెళ్ళిపోదాం మెల్లిగా. అక్కడికి వెళ్ళి కౌంటర్లో టికెట్ తీసుకుంటే 40 అంట.
ఇక్కడ ఆన్లైన్లో స్కాన్ చేసి తీసుకుంటే తప్పిస్తాయి. ఆన్లైన్లో స్కాన్ చేసి తీసుకున్నాం. ఓకే బ్రో, వెల్కమ్ టు కోనార్క్ సూర్య టెంపుల్. వర్షంలో వెళ్ళాలంటేనే డౌట్ కింద కెమెరా పట్టుకొని, బట్ వేరే ఆప్షన్ లేదు. 5 రోజుల నుంచి ఇలానే పడుతుందంట. ఒకరోజు ఆగుదామన్నా సో ఇలానే ఓపెన్ ప్లేసెస్లో తీయలేకపోవచ్చు. आई एम सॉरी फॉर दैट. हिंदू धर्म मंदिर जाएंगे देखने के लिए, आप लोग को 2 चीज़ देखने के लिए मिलेगा. सामने में शेर, नहीं तो कहीं पे हाथी. लेकिन कोणार्क मंदिर का तीनों चीज़ देखने के लिए मिलेगा. नीचे में कि इंसान आदमी पड़ा हुआ है, इंसान को दबा के रखा है हाथी, हाथी को दबा के रखा है शेर. ये एक ही स्टोन को काट के 2 साइड में सेम डिजाइन का मूर्ति बना गया. इसका बनाने का रीजन है क्योंकि शेर होता है ताकतवर, हाथी होता है गजलक्ष्मी, धन का प्रतीक. एक आदमी के पास ताकत पैसा बराबर हो जाने के बाद किस किस के मन में घमंड अहंकार भाव चला आता है, इसीलिए इंसान नीचे में दब जाता है. भगवान बोले आपके मन में मेन टेम्पल को तोड़ देने के बाद ये लोहे का बीम यहाँ पर रेत में दब गया था. इस मंदिर को जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया, इस मंदिर का गार्डन काम किया, तो आयरन का बीम रेत से निकला उधर रखा गया है. तो आयरन का बीम मंदिर के अंदर क्यों यूज किया गया था, तो मेन टेम्पल को दिखाएंगे, बताएंगे. कला है इसमें, कथाकली, मणिपुरी, ओडिसी, डांडिया, भारतनाट्यम है. कोई तुरी फूक रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई गिनी पीट रहा है, कोई झांझ पीट रहा है. गणेश का डांस, शिव जी का डांस, इस आइटम से इस मंदिर को चारों तरफ घुमा के 128 के डिजाइन की कलाकृति में बना गया. ऊपर में देखिए नवरात्रि खेल, गुजर खेल, डांडिया खेल चल रहा है. इस मंदिर को उड़ीसा का राजा नांगुला नरसिंहदेव रानी भानुमती ने बनाए थे. गोंगो डायनेस का राजा, उड़ीसा का फर्स्ट राजा. इस मंदिर को राजा नांगुला नरसिंहदेव ने 1238 में स्टार्ट किए. 1250 में ये मंदिर को कंप्लीट बनाए तो 12 साल लगा था. 1200 मजदूर 12 साल के अंदर 12 एकड़ जमीन के अंदर 5 टेम्पल बनाए. ये पहला टेम्पल नृत्य मंडप, इसके आगे में 4 टेम्पल दिखाएंगे. इस मंदिर का उम्र भी 900 ईयर्स हो जाता है. 900 साल का पुराना मंदिर हम देख रहे हैं, 13 सेंचुरी. 5 टेम्पल नहीं बनेगा, एक दिन ज़्यादा हो जाएगा या एक आदमी ज़्यादा हो जाएगा तो 1200 मजदूर लोग का गर्दन काट के यहीं पे गाड़ देंगे. तो 1200 मजदूर लोग यहाँ पे रुक के 12 साल के अंदर जो 5 टेम्पल बनाए थे वही उनका कुआं, उसी कुएं से पानी लेके वही उनका किचन रूम. 1200 मजदूर के लिए इसके अंदर प्रसाद बनता था. इसका छात था, छात टूट जाने के बाद उसका पिलर रह गया. ये 1200 मजदूर के लिए भोग मंडप. सूर्य नारायण को सुबह में इसके ऊपर में नैवेद्य में चढ़ा जाएगा, तभी मजदूर लोग खाना खा के काम करने के लिए जाएंगे. और ये 1200 मजदूर के लिए चंदन घिसने का विधि. इस पत्थर के ऊपर में 1200 मजदूर के लिए लकड़ी का चंदन घिसा जाएगा. चंदन रहेगा ऊपर, पानी चलाएगा नीचे. तो 1200 मजदूर लोग चंदन लगा के क्यों काम करने के लिए जाते थे, क्योंकि गर्मी के दिन में उनका दिमाग ठंडा रहता था. और जो काम सोचते थे बनाने के लिए ठंडे दिमाग में सोचते थे. चंदन का प्लस पॉइंट है, जिस काम में भी जाइए चंदन लगा के जाएंगे तो आपका काम शुभ रहेगा. इसीलिए साउथ लोग ज़्यादा चंदन लगाते हैं, हरे कृष्ण लोग बहुत सारा चंदन लगाते हैं. चढ़ने के लिए अलाउड था, अब गवर्नमेंट ने बंद कर दिया. 5 महीना हुआ क्योंकि इसके ऊपर 3 एक्सीडेंट हो गया. इसके ऊपर खड़ा लोग के लोग मोबाइल से सेल्फी फ़ोटो ले रहे थे तो नीचे गिर गए. तो ऐसे 3 एक्सीडेंट होने से गवर्नमेंट ने इसके ऊपर चढ़ना बंद कर दिया. ये पूरा मंदिर था, इसका ऊपर वाला हिस्सा टूट चुका है और इतना है बचा देखने के लिए. तो ऐसा तीनों डोर क्यों बना गया, उनका बनाने का रीजन है क्योंकि यह पूरब दिख ईस्ट है. जब सूर्य का रोशनी उठेंगे ऑल भारत में पहले सुबह का रोशनी इसी तीनों डोर देखा आएगा. इसीलिए इसका नाम सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर बोला जाता है. ऑल भारत में पहले सनराइजिंग कोणार्क अंदर होंगे, सनसेट होंगे कन्याकुमारी में. पहले सुबह का रोशनी इसी तीनों डोर देके आएगा. हम कैसे पता करेंगे, सूर्य का रोशनी 3 गति देके आएंगे. सूर्य का रोशनी उत्तरायण, दक्षिणायन, मध्याह्न होंगे. बरस के 12 महीना होता है. एक एक डोर में बारिश का 4 महीना, गर्मी का 4 महीना, सर्दी का 4 महीना, 4 महीना करके सूर्य का पहला रोशनी आके इस मंदिर के दरवाजे में टकराएगा. ये दरवाजे में सूर्य का रोशनी टकरा के इस मंदिर के पीछे के तरफ सूर्य का रोशनी चला जाएगा. क्योंकि ये जो टेम्पल हम देख रहे हैं ये मेन टेम्पल नहीं है, ये प्रार्थना हॉल है, ऑडियंस हॉल है. इसका हाइट है 127 फीट. इसके पीछे में था मेन टेम्पल जिसका हाइट था 227 फीट. आगे वाला टेम्पल से पीछे वाला टेम्पल का हाइट 100 फीट और बड़ा था. 227 फीट मंदिर को तोड़ दिया गया है. 227 फीट मंदिर को तोड़ देने के बाद इधर 4 टेम्पल टूट चुका है. 227 फीट मंदिर को तोड़ देने के बाद अब 90 फीट बचा हुआ है.
227 फीट मंदिर को तोड़ देने के बाद 127 फीट मंदिर को बचाने के लिए इसके अंदर रेत, मिट्टी, पत्थर नीचे से ऊपर तक भारी कर दिया गया है। इसीलिए मंदिर को सपोर्टिंग मिल गया, इसीलिए मंदिर बच गया, नहीं तो ये मंदिर भी गिर जाता। तो 227 फीट मंदिर को किसने तोड़ के चला गया? 127 फीट मंदिर के अंदर किसने रेत, मिट्टी, पत्थर भर दिए? पीछे में टूटा है मंदिर को दिखाएंगे, बताएंगे। ये सस्पेंस था। गिरा, पत्थर के ऊपर पत्थर गिर के यहाँ पे हर चीज़ टूट चुका है। तो इस मंदिर के सामने में 7 हॉर्सेस और इसमें 24 व्हील्स लगा हुआ है। ये सूर्या भवन का दिग्विजय रथ है। रथ के ऊपर में इस मंदिर को बना गया है। 900 पहले देवदासी प्रथा था। ये देवदासी नृत्य करते करते आगे आगे जा रहे हैं, ये रथ पीछे पीछे जा रहा है। तो इस मंदिर के सामने में 7 हॉर्सेस 24 व्हील्स क्यों लगा गया? 7 हॉर्सेस देने का मीनिंग्स है, सूर्या भवन का 7 कलर होता है। जो इंद्रधनुष रेनबो लगते हैं उनके 7 कलर होते हैं। सप्ताह के 7 दिन होता है, सप्त ऋषि होते हैं, इसीलिए 7 हॉर्सेस लगा गया। 24 व्हील्स क्यों लगा गया? क्योंकि एक महीने में 2 पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ला पक्ष, एक पूर्णिमा, एक अमावस्या। राइट साइड में जो 12 व्हील्स देखेंगे कृष्ण पक्ष, लेफ्ट साइड में जो 12 व्हील्स चक्का देखेंगे शुक्ला पक्ष। 24 आवर्स के लिए 24 व्हील्स लगा गया है। इसको बोलते हैं सन चैरियट। इस मंदिर को 3 स्टेज में बना गया। कैसे न? जैसे हमारा आदमी के जीवन में 3 स्टेज आता है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, चाइल्ड, यंग, ओल्ड। 3 स्टेज का लोग इस मंदिर को देखेंगे। ऐसे देखने से कुछ नहीं पता चलेगा। छोटा बच्चा देखने के लिए नीचे में बहुत सारा जानवर, हाथी, घोड़ा बॉर्डर में घुमा के दिया गया है। छोटा बच्चा देख के खुश हो जाएंगे। हम जवान हो गए, जवान के लिए बीच में कामसूत्र वाला चित्रकला लगा गया, जैसे खजुराहो में है। हम बूढ़ा बूढ़ी हो गए, भगवान को पूछ के मरेंगे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राधा कृष्ण चित्रकला ऊपर में दिया गया। तो चाइल्ड, यंग, ओल्ड 3 स्टेज का लोग इस मंदिर को देखेंगे। यहाँ पे जवान के लिए जो सेक्सुअल पॉइंट लगा गया है उसको 3 स्टेज में बना गया। मोनोगामी, पॉलीगामी, पॉलीएंट्री। मोनोगामी होता है 1 लड़का 1 लड़की, पॉलीगामी होता है 1 लड़का 2 लड़की, पॉलीएंट्री होता है 1 लड़का बहुत सारा लड़की, जैसे राजा का 100 रानियाँ होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे 24 व्हील्स के अंदर 1 व्हील्स कंप्लीट है और 23 व्हील्स डैमेज रिपेयरिंग हुआ है, लेकिन 4 नंबर व्हील्स वाला पूरा कंप्लीट है। 4 नंबर व्हील्स के पास जाएंगे, दिखाएं। 1 व्हील्स कंप्लीट है और 23 व्हील्स डैमेज रिपेयरिंग हुआ है। उस व्हील को देखिए, ऊपर जो प्लेन वाला पीस पत्थर देख रहे हैं उसमें कार्विंग नहीं है, उसको बाद में जुड़ाई किया गया, रिपेयरिंग किया गया, लेकिन इसका कार्बन अच्छा है। एक ही चक्का बचा है, इसका नाम है जीवन चक्र यानी लाइफ सर्कल बोला जाता है, क्योंकि इस चक्के के अंदर एक रानी का डेली रूटीन है। दिन को 12 घंटा क्या काम करते हैं, रात को 12 घंटा क्या काम करते हैं, डे डिवीजन, नाइट डिवीजन इस चक्के के अंदर हम पता करेंगे। तो कैसे पता करेंगे? इसमें देखिए 8 स्पोक है। अष्टपहर में रात गुजर जाता है। 900 साल पहले कोई घंटा घड़ी नहीं था, लोग पहर के हिसाब में चलते थे। एक स्पोक का 3-3 घंटे के व्यवधान है, तो 8-3 24 घंटा। 24 घंटे के लिए इसमें 8 स्पोक लगा गया। तो इसमें हम डे डिवीजन, नाइट डिवीजन कैसे पता करेंगे? उस स्पोक में देखिए, रानी सुबह उठे बेड के ऊपर बैठ कर अंगड़ाई लेते हैं। अंगड़ाई लेने के बाद नहाने के लिए जाएंगे। दोनों दासी उनको कपड़ा देने के लिए आए हैं। वो नहा के आगे घोड़े के ऊपर बैठ के जंगल को हल्टिंग करने के लिए चला गए। घोड़े से घूम कर आगे शाम हो गया, मिरर पकड़ के श्रृंगार हुए। तो 1 2 3 4 4 स्पोक में दिन का काम डे डिवीजन 12 घंटा कंप्लीट। तो 1 2 3 4 4 स्पोक में नाइट डिवीजन 12 घंटा सेक्सुअल मोनोगामी में। तो उस जमान में जो आदमी गलत काम करते थे, खराब काम करते थे, बीच में सेंटर में खंभा में देखिए आदमी को पत्थर के ऊपर रख के हाथी के पाँव में दबा देते हैं। पनिशमेंट दिया जा रहा है। सब नमस्कार जोड़े हैं, हमको छोड़ दीजिए। ऐसा गलत काम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि 900 साल पहले उस जमान में कोई थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी नहीं था। जो इंसान गलत काम करते थे डायरेक्ट जानवर के पाँव में दबा के पनिशमेंट दिया जाता था। नो आर्गूमेंट, फैसला ऑन द स्पॉट। इस मंदिर के अंदर जितना प्लेन वाला पत्थर देख रहे हैं, इसको बाद में प्लेन बना दिया गया। इस कोणार्क मंदिर के अंदर ऐसा कोई प्लेन पत्थर नहीं था जिसमें कार्विंग नहीं था। हर पत्थर में डिजाइन था। ये डिजाइन झड़ जाने के बाद प्लेन पत्थर सेटिंग किया जा रहा है। ये लाल वाला पत्थर अभी रेनोवेशन हुआ है, ये वाला। हाँ, अभी नया लगा। घोड़े का दरवाजा, ये जो दोनों घोड़े देख रहे हैं, ये दोनों घोड़े ये दोनों ही दरवाजे के ऊपर में थे। इनका चेहरा इस तरफ था। ये दोनों घोड़े गिर जाने के बाद डिपर में लेकर वहाँ पे शिफ्ट कर दिए, उनका चेहरा इस तरह बना दिए। ये दोनों घोड़े हमारा उड़ीसा गवर्नमेंट का सिंबल है। जब हम ऑफिस में जाएंगे तनख्वाह उठाने के लिए एक रेवेन्यू स्टाम्प लगेगा और कोर्ट पेपर के ऊपर में यही घोड़ा आपको नजर आएंगे। जैसे हमारा उड़ीसा टूरिज्म के गाइड के कार्ड के ऊपर में घोड़े का निशान है। उस साइड में आपको दिखाएंगे उत्तर द्वार
उत्तर दरवाजे में दोनों हाथी का दरवाज़ा, उसको बोलते हैं गजद्वार, सामने को बोलते हैं सिंहद्वार, इसको बोलते हैं अश्वद्वार। ये तीनों डोर सॉलिड पैक है। इस मंदिर के अंदर जाने आने के लिए रास्ता नहीं है। पूरी जगन्नाथ मंदिर में 4 डोर है, कोणार्क में 3 डोर है, क्योंकि ये सूर्यभवन का रथ है। रथ के पीछे में डोर नहीं रहता। आप जो इतना पैसा खर्च करके इतना दूर से आए हैं कोणार्क मंदिर के अंदर सूर्यभवन को दर्शन करने के लिए, इस कोणार्क मंदिर के अंदर सूर्यभवन का मेन मूर्ति नहीं है। मेन मूर्ति अभी पूरी जगन्नाथ मंदिर में स्थापना किया गया है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में है, हिंदू नियम में है, कोई मंदिर खंडित हो जाता है, कोई मूर्ति खंडित हो जाता है, वहाँ पे कभी पूजा पाठ नहीं होता है। इसीलिए यहाँ का मूर्ति लेके शिवाजी छत्रपति के पीरियड टाइम में पूरी जगन्नाथ मंदिर में स्थापना कर दिया गया है। इसीलिए यहाँ पे हर देश का लोग चप्पल, कैमरा, मोबाइल पकड़ के घूम पाते हैं। पूरी जगन्नाथ मंदिर के अंदर नहीं जा पाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप तीनों सूर्यभवन का अवतार दर्शन करेंगे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, हम जिसको बोलते हैं 500 देवता। ऊपर में देखिए जो काला वाला ग्रीन वाला मूर्ति रूम में खड़े हुए हैं वो ब्रह्मा जी हैं। उस साइड में दिखाएंगे विष्णु भगवान को, उस साइड में दिखाएंगे महेश भगवान को। तो प्रभात सूर्य, मध्याह्न सूर्य, अस्तगामी सूर्यभवन, और दोनों सूर्यभवन का मूर्ति 2 साइड में है। इस मंदिर को अभी ASI अंडर में लिया है, आर्कोलॉजी सर्टिफिकेट दिया लोग। इनको गवर्नमेंट ने साफ़ सुथरा कर रहे हैं, केमिकल वॉश करके कहीं पे काई हो गया और कहीं पे डिजाइन झड़ गया, प्लेन पत्थर सेटिंग कर रहे हैं। इनका सीढ़ियाँ बंद है, उनका लोग जाएंगे काम करने के लिए। अदर लोग को ऊपर नहीं छोड़ते थे, लेकिन इसके ऊपर पूरा घूमने के लिए पहले था, लोग घूमते थे इसके ऊपर। चुका है हमारा उड़ीसा का राजा नांगुला नरसिंहदेव 900 पहले जब इस मंदिर को बना रहे थे तो जमाने में कोई रुपया नहीं था, कोई मनी भी नहीं था। तो इस मंदिर को बनाने के लिए हमारा उड़ीसा का राजस्व 40 करोड़ गोल्ड कॉइन खर्च हुआ था। 1200 मजदूर ने इस मंदिर को कंप्लीट बना देने के बाद राजा नांगुला नरसिंहदेव ने 1200 मजदूर को 40 करोड़ गोल्ड कॉइन दे दिए। वो लेके सब घर को चला गए। ये जो चक्का देख रहे हैं ये बाएं की तरफ 6 नंबर वाला चक्का है, लेफ्ट साइड का 6 नंबर चक्का। ये आपको पुराना वाला 20 रुपया 20 रुपीज़ के पीछे में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अब नया वाला 20 रुपया नोट में नहीं आता है, गवर्नमेंट ने बैन कर दिए हैं। लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने 10 रुपीज़ में निकाल दिए। नीचे में लिखा है सन टेम्पल कोणार्क। ये G20 सबलैंड में निकला हुआ। अच्छा, इस मंदिर को अभी 900 ईयर्स हो जाता है। 900 साल पहले उस ज़माने में इस मंदिर को बनाने के लिए कोई सीमेंट का कारखाना नहीं था, कोई सीमेंट का फैक्ट्री नहीं था। तो इतना बड़ा बड़ा पीस पत्थर को कैसे जुड़ाई किया गया? ये एक पीस पत्थर नहीं, इसको काट के बना दिए। ये सब पीस पत्थर है। मिला के उनके गैप के अंदर भरी कर देते थे, क्योंकि मजबूत रहेगा। सीमेंट नहीं था उस जमाने में, चूना और बेलम, लोहे का क्लाम। यहाँ पे एक शेर का मूर्ति रखा हुआ है। ये था 227 फीट मंदिर के ऊपर में। मेन टेम्पल पर से गिर जाने के बाद डिपार्टमेंट ला के यहीं पर रखे हैं। इसका पीस और भी उधर है, बहुत सारा दिखाएंगे, बताएंगे। ये सैंपल देख रहे हैं। अभी तक जांक राष्ट्र नहीं पकड़ पा रहा है, जिसको बोलते हैं इंटरलॉक। 900 साल पहले इंडिया में जब शादी होता था तो शादी में कोई गाड़ी मोटर नहीं जाता था, क्योंकि उस जमाने में गाड़ी मोटर नहीं था। पालकी सवारी में डोली जाता था। ऊपर में देखिए मैरिज प्रोसेसन, पालकी सवारी में डोली जा रहा है। ये सब सेक्सुअल पॉइंट लगा है मनोगामी पॉलीगामी में, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का 2 लड़के। अच्छा, 900 साल पहले कोई घंटा घड़ी नहीं था। लोग इस चक्के से टाइम मालूम करते थे, 1200 मजदूर लोग। अच्छा, कैसे ना ये सूर्य का रोशनी रहेगा तो इसमें टाइम हम मालूम करते हैं। कैसे ना, ये है पूरब दिग ईस्ट है। जब सूर्य का रोशनी उठेगा, किसी चक्के पे सूर्य का रोशनी रहेगा तो आप टाइम मालूम कर लेंगे। हमारा घड़ी में 12 और 6 होता है, ये घड़ी उल्टा चलेगा। इसको बोलते हैं एंटी क्लॉक। जब सूर्य का रोशनी चक्के पर रहेगा, आप सुबह में आएंगे, बीच में कुछ डंडा लगाइए या डॉट पेन लगाइए, आपको उंगली लगाइए। आपका उंगली का छाव डायरेक्ट स्पोक पर रहेगा तो सुबह 6 बजेगा। फिर 3 घंटा छोड़ देंगे, बीच में उंगली लगाएंगे, आपका उंगली छाव स्पोक पर रहेगा तो 6-3-9 बजेगा। फिर 3 घंटा छोड़ देंगे, बीच में उंगली लगाएंगे, आपका उंगली छाव स्पोक पर रहेगा तो 9-3-12, 12-3-15, 15-3-18, 18-3 21, 21-3 24, 24 घंटे के लिए इसमें 8 स्पोक लगा गया। बीच में जो गोल गोल डॉट लंबा लंबा देख रहे हैं, पतला पतला सा, वो 1.5 घंटे का टाइम है। इस स्पोक से स्पोक जो 3 घंटे के व्यवधान है, इसके नीचे में देखिए 60 डॉट है, 60 गोली है। एक एक डॉट का 3-3 मिनट का टाइम तो 60-180। बीच में उंगली लगाइए, जिस डॉट का वो उंगली का छाव रहेगा, वहाँ से यहाँ तक काउंटिंग कर देंगे, आपको परफेक्ट टाइम मिल जाएगा। आपका घड़ी का टाइम, मोबाइल का टाइम सब भूल। उनका नाम है यमराज और उनका जो बेटी है उनका नाम है यमुना।
यमुना, यम और शनि, ये तीनों भाई बहन थे। ये दोनों मंदिर टूट जाने के बाद इसके अंदर जो छाया देवी, संध्या देवी का मूर्ति था, अब कोणार्क संग्रहालय म्यूजियम में रखा गया है। क्योंकि मंदिर चारों तरफ खुला है, चारों तरफ जंगल है, कोई मूर्ति को चोरी करके लेके चला जाएगा, इसीलिए गवर्नमेंट ने इस मूर्ति को लेके म्यूजियम के अंदर रख दिए। मंदिर के अंदर कुछ नहीं है, खंडित पड़ा हुआ है, अंदर में लॉक लगा हुआ है। इसी मंदिर का हाइट था 227 हाइट मंदिर। पीछे वाला आगे वाला टेम्पल से इस पीछे वाला टेम्पल का हाइट 100 फीट ज़्यादा था। इस मंदिर को तोड़ा गया है प्रतिकुछ लोग ने इस मंदिर को क्यों तोड़ के चला गए? हमें ऑल इंडिया में जितना भी सारा मंदिर जाएंगे देखने के लिए, हर मंदिर के टॉप के ऊपर में एक कलसी रहता है। ये जो 227 फीट का हाइट मंदिर था, इस मंदिर के टॉप के ऊपर भी एक कलसी था। वो कलश एक मैग्नेट था, चुंबक था, उसका वजन था 53 टन, 53,000 किलो का एक मैग्नेट इस मंदिर का टॉप के ऊपर में 900 साल पहले बैलेंस की तरह लगा गया था। क्योंकि 900 साल पहले इस मंदिर को बनाने के लिए कोई सीमेंट का कारखाना नहीं था। आयरन का क्लाम देके, आयरन का बीम देके इस पत्थर को जोड़े किया गया था। इसीलिए मैग्नेट ने इस मंदिर को बैलेंस में रखा था, आयरन का क्लाम, आयरन का बीम। तो मैग्नेट को जो पत्थर गुजले ने हटा के ले गए तो ये मंदिर अनबैलेंस हो गया, आयरन का क्लिप सब लूज हो गया। तो 227 फुट वाला टेम्पल गिरने लगा। जब गिर के 90 फीट रह गया, तब क्या हुआ? अंग, बंग, कलिंग, उड़ीसा, बिहार और बंगाल तीनों स्टेट मिलके जब एक ही स्टेट में थे, तो लॉर्ड राजा थे, बंगाल सरकार का राजा, वो इधर घूमने के लिए आए थे। वो देखे 227 फुट वाला टेम्पल गिर रहा है। जो आगे का मंदिर 127 हाइट मंदिर है, उसके पर पत्थर गिर के वो मंदिर दब जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए 127 फीट मंदिर को बचाने के लिए तीनों स्टेट मिलके 127 फीट मंदिर का कलश को तोड़ दिए, उसके अंदर रेत मिट्टी पत्थर भर दिए और उसका तीनों डोर सील कर दिए 1903 में। इसीलिए इस मंदिर के अंदर जाने आने के लिए रास्ता नहीं है। और प्रतिकुछ लोग ने मैग्नेट को ले जाने के बाद ये पत्थर सब झड़ रहा है, टूट रहा है। तो प्रतिकुछ लोग ने यहाँ से मैग्नेट को चोरी करके क्यों लेके चला गए? उनका ले जाने के वजह थे, मतलब था। क्योंकि 900 पहले यहाँ पे नदी और समुद्र का संगम था। इस कोणार्क मंदिर को नदी और समुद्र के किनारे में बना गया था। आप लोग जो कोणार्क आए, पूरी होके आए या भुवनेश्वर होके? भुवनेश्वर। पूरी जाएंगे? हाँ। अच्छा, यहाँ से जब पूरी निकलेंगे, यहाँ से 4 किलोमीटर जाने के बाद एक बीच आएगा, उसका नाम है चंद्रभागा। 900 साल पहले चंद्र का बीच यहाँ पे था। साइक्लोन वजह से सूख के 4 किलोमीटर पीछे चला गया है। इसीलिए सब जंगल हो गया, गांव हो गया। जंगल हो जाने के बाद मंदिर के अंदर सूर्य का रोशन ठीक से नहीं आ पा रहा है। 900 साल पहले जब यहाँ पे नदी और समुद्र का संगम था, तो प्रतिकुछ लोग का उनका बड़ा बड़ा पानी का जहाज इधर जाना आना करता था। क्योंकि उनका शहर का सामान ज़्यादा उड़ीसा में बेचते थे, तो उनको ज़्यादा सामान, ज़्यादा आदमी को भेजने के लिए शिप का ज़रूरत हुआ। जब शिप इधर आया तो शिप में कंपास होता था, आयरन लोहा होता था, उनको दिशा दिखाने के लिए, नॉर्थ ईस्ट साउथ दिखाने के लिए। वो जो मैग्नेट था उनको शिप को 5 किलोमीटर से मिसगाइड कर देता था। उनको पायलट को पता नहीं चलता था हमारा शिप किधर जा रहा है। तो दोनों शिप आ रहे थे, दोनों शिप का डायरेक्शन चेंज हो जाने के बाद दोनों के अंदर एक्सीडेंट हो जाता था। तो भ्रष्ट वो देखा, हमारा उड़ीसा में ज़्यादा व्यापार होता है, ज़्यादा मुनाफा होता है, लेकिन इस मंदिर का टॉप के ऊपर में क्या चीज़ है हमको जाना आने के लिए नहीं देता है। इसीलिए नीचे से उसको तोप, कमान, डायनामाइट लगा के उस टॉप को नीचे में गिरा के उसको पीस करके यहाँ से उड़ा कर लेके चला गए। इसीलिए पत्थर का डिजाइन सब झड़ रहा है, टूट रहा है। इस साइड में 12 होल्स कंप्लीट हो जाएगा, उस साइड में 12 होल्स स्टार्ट होगा। शुक्ला पक्का कंप्लीट हो जाएगा, सिस्टम पक्का स्टार्ट होगा, डे डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, नाइट डिवीजन स्टार्ट होगा। बाद में सेटिंग किया हुआ है। अच्छा, यहाँ से भुवनेश्वर 65 किलोमीटर, यहाँ से पूरी 35 किलोमीटर। लेकिन इसके अंदर किसी जगह भी आप घूमने के लिए जाएंगे, आपको यहाँ पे कहीं पे पत्थर का पहाड़ देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको नदी, जंगल, समुंदर, रेत देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इस कोणार्क मंदिर के अंदर इतना सारा पत्थर ला गया कहाँ से? इतना बड़ा मंदिर बना गया कैसे? इतना ऊंचाई तक पत्थर चढ़ा कैसे? 900 साल पहले कोई क्रेन, गाड़ी, मोटर, लिफ्ट सिस्टम नहीं था, तो यहीं पे इंजीनियर लोग भी फेल मार जाते हैं, वो जान नहीं पाते हैं इतना सारा पत्थर ला गया कहाँ से, इतना बड़ा मंदिर बना गया कैसे। इस कोणार्क मंदिर के अंदर हम जितना सारा पत्थर देख रहे हैं, हर पत्थर आया है भुवनेश्वर से। खंडागिरी, उदयगिरी, धौलगिरी। आप जब यहाँ से भुवनेश्वर एंट्री करेंगे, पहला एक मंदिर आएगा, उसका नाम है धौलगिरी। बुद्ध मूर्ति पहाड़ के ऊपर में है,
पहाड़ के ऊपर जाके बुर्दू मूर्ति दर्शन करके उसके नीचे में देखेंगे आपको एक रिवर दिखाई देगा। उस रिवर का नाम है दया रिवर। दया रिवर 900 साल पहले चंद्रभागा के साथ कनेक्शन था। वो क्या करते थे, खंडागिरी, उदयगिरी, धौलीगिरी तीनों पहाड़ का पत्थर काट के लकड़ी को बोर्ड बना के उसके ऊपर पत्थर को रख के नदी के किनारे किनारे खींच के लेके आते थे। 65 किलोमीटर भुवनेश्वर से पत्थर ट्रांसपोर्टिंग हो गया कोणार्क, तो इतना ऊंचा तक पत्थर चढ़ा के से देखिए हम नीचे से काम स्टार्ट किए। हमारा हाथ इतना दूर तक जाएगा और तो ऊपर नहीं जाएगा। जितना दूर तक हाथ गया नीचे से रेत और मिट्टी को डाल के स्लोप बना दिए, उसके पर चढ़ गए, फिर काम स्टार्ट किए। जितना दूर तक हाथ गया फिर नीचे से रेत को पत्थर को डाल के फिर स्लोप बनाए। ऐसे मंदिर को बनाते बनाते जब पूरा मंदिर कंप्लीट हो गया चारों तरफ रेत को ढकल दिए, क्योंकि चारों तरफ नदी समुद्र था। रेत को खींच के लेके चला गया और मंदिर चला आया। और नीचे में आपको जो बहुत सारा जानवर हाथी घोड़ा दिखा रहे थे वो सब पत्थर को लेके सेटिंग के लिए जाते थे, क्योंकि आदमी देखे सेटिंग करके रखे हैं, क्योंकि बाकी को कार्विंग को बचाने के लिए, नहीं तो बाकी का डिजाइन सब गिर जाता। उस साइड में 12 हाउस कंप्लीट हुआ, इस साइड में 12 हाउस स्टार्ट हुआ, शुक्ल पक्ष कंप्लीट हुआ, कृष्ण पक्ष स्टार्ट हुआ, डे डिवीजन कंप्लीट हुआ, नाइट डिवीजन स्टार्ट हुआ। इस मंदिर को कमल फूल के पाखुड़े के ऊपर में बनाया गया था। पूरा फूल के ऊपर में लोटस के ऊपर मंदिर था। ये मंदिर का लोटस पर सब टूट चुका है मेन टेम्पल गिरने के बाद। 227 फीट तक सूर्य का रोशनी आएगा। तो इस मंदिर के अंदर एक मैग्नेट नहीं था, 2 मैग्नेट था। ऊपर रहा 53 टन का मैग्नेट, नीचे रहा 10 टन का मैग्नेट। इस मंदिर के अंदर जो मूर्ति थे वो अष्ट धातु के थे, 8 मेटल मिला के मूर्ति बना गया था। वो मूर्ति मैग्नेट वजह से हवा में झूलते रहते थे। जब सूर्य का रोशनी आएगा तो उनके माथे में एक मकुट था, उन मकुट में एक हीरा था, तो डायरेक्ट सूर्य का रोशनी उनके मकुट में लगेगा तो ये मंदिर पूरा चमकने लगेगा। तो मूर्ति अभी पूरी जगन्नाथ मंदिर में है। तो मकुट को ले चुके हैं प्रतिगुज लोग ने। 127 फीट के टॉप के पास देखिए शेर का मूर्ति देख रहे हैं। ये जो 227 फीट का हाइट मंदिर था, इस मंदिर के टॉप के ऊपर भी सिंह का मूर्ति था। तो 227 फीट वाला टेम्पल गिर जाने के बाद उसके टॉप के ऊपर सिंह का मूर्ति गिर जाने के बाद इधर रखा गया है। ये जितना सारा पीस पत्थर देख रहे हैं मेन टेम्पल का पार्ट है। ये सब सिंगल स्टोन है, ये कोई जॉइंट नहीं लगा हुआ है। और 900 साल का आयरन का बीम है, उसको अभी तक जंग रस्ट नहीं पकड़ पा रहा है। इसका पीस और भी सामने आपको दिखाएंगे, आइए। अब रुको रे और लेखा है पढ़ी जाओ तो नहीं सिक्योरिटी गार्ड आए सब दरवाजा। ये है दक्षिण द्वार। दक्षिण दरवाजे में देखे थे घोड़े का दरवाजा, पूरब दिग में देखे थे सिंह का दरवाजा। ये है उत्तर द्वार। उत्तर दरवाजे में दोनों हाथी का दरवाजा, इसको बोलते हैं गजा द्वार। ये दोनों हाथी ये दोनों दरवाजे के ऊपर में थे, जैसे दोनों घोड़े थे। ये दोनों हाथी दरवाजे पर से गिर जाने के बाद डिपार्टमेंट लेके वहाँ पर शिफ्ट कर दिए। ये दोनों हाथी ट्रेनिंग लिए हाथी हैं, युद्ध वाला हाथी हैं। दोनों राक्षस को पकड़ के मार चुके हैं। उनके हाथ में देखिए एक हाथ में ढाल है और एक हाथ में तलवार है। हमने किचन रूम में देखे थे कुआं खाना बनाने के लिए, और इधर एक कुआं है। इसी कुएं से पानी लेके सूर्य नारायण को पूजा करने वाले थे, जो पूरी जगन्नाथ मंदिर में स्थापना किया गया है। यह सभा मंडप, पंडित लोग का इसके ऊपर सभा चलेगा। राजा नांगुला नरसिंह देव वो छोटे मंडप के ऊपर बैठेंगे। उनके पूजा में क्या क्या चीज़ लाएंगे, कैसा कैसा पूजा होगा, सबका लिस्ट इसके ऊपर बना जाएगा। इस जमान में बोला जाता है कॉन्फ्रेंस हॉल। ये पत्थर है चेन्नई से मद्रास से, इसका नाम है ग्रीन ग्रेनाइट पीस पत्थर। यहाँ पे 12 24 चक्का कंप्लीट, 7 घोड़ा कंप्लीट। उस साइड में 4 टूट गए थे, इस साइड में 3 टूट चुके हैं। इसका पीस एक टुकड़ा वहाँ पे बरगद से मेरे नीचे में रखा हुए दिखाएंगे, आइए। यहाँ पे ग्रीन ग्रेनाइट पीस पत्थर रखा हुआ है। ये था दक्षिण द्वार, घोड़े के दरवाजे पर में था। घोड़े के दरवाजे पर से गिर जाने के बाद डिपार्टमेंट ला के यहीं पर रखे हैं। नीचे में देखिए नाग नागिन का बंधन हुआ है। ये शेष नाग है, आधा आदमी है आधा सांप है। ये परी लोग आकाश में उड़ रहे हैं, और यहाँ पे नीचे में बिना बादल में सब बैठे हुए हैं, और ऋषि महाऋषि सब तपस्या में बैठे हुए हैं। यही डिजाइन दरवाजे के फ्रंट के ग्रीन ग्रेनाइट पीस पत्थर के ऊपर में यही डिजाइन है यहाँ पे जो रखा गया है। ये ब्रो आयरन पिलर्स 900 years old अंटर 70। यहाँ पे सब आयरन का बीम रखा हुआ है। ये था मेन टेम्पल के अंदर। मेन टेम्पल को तोड़ने के बाद ये आयरन का बीम रेत में दब गया था, यहाँ पे रखा हुआ है। इसीलिए मैग्नेट ने इस मंदिर को बैलेंस में रखा था, आयरन का बीम आयरन का क्लैम्प से।
अच्छा, यहीं पे हमारा लास्ट बात है, बात ख़त्म हो जाएगा। आप लोग जो जगह में घूमने के लिए आए हैं, इस जगह का नाम है कोणार्क। कोणार्क एक संस्कृत वर्ड है। इस कोणार्क मंदिर को पूरब और उत्तर के कोण में बना गया है, जिसको बोलते हैं ईशान कोण। आप लोग जब यहाँ से घूम के घर को चाहेंगे, आपके घर में कोई 9-10 क्लास में बच्चे लोग पढ़ते हैं, आपको क्वेश्चन करेंगे। आपके घर में कोई बुजुर्ग लोग होंगे, आपको क्वेश्चन करेंगे, आप लोग इतना दिन तक छुट्टी लेके कहाँ गए थे, तो आप लोग बोलोगे हम कोणार्क टेम्पल घूमने के लिए गए थे। तो बच्चे लोग का, बुजुर्ग लोग का क्वेश्चन आएगा, कोणार्क का मीनिंग क्या है। तो वहाँ पे आप आंसर नहीं दे पाएंगे। वहाँ पे सोचेंगे कोणार्क मंदिर के नाम ने के गाय लिए थे, गाय ने पैसा लेके चला गया, लेकिन क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया। लेकिन नहीं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर है। क्या है? कोण मीनिंग्स ज्योमेट्रिकल एंगल होता है, ट्रायंगल। आर्क मीनिंग्स सूर्य होते हैं, सूर्य भवन को आर्क बोला जाता है। कोण प्लस आर्क इज इक्वल टू कोणार्क। आप लोग के पास एक बार फिर क्वेश्चन आएगा, आप लोग कोण में खड़े हुए थे, एंगल में खड़े हुए थे, या किसी जंगल के अंदर खड़े हुए थे। आप लोग को ऐसे बताना है, जब हम पुरी से आएंगे कोणार्क तो जाएंगे भुवनेश्वर, जब भुवनेश्वर से आएंगे कोणार्क तो जाएंगे पुरी, और बीच में कोई रास्ता नहीं है। जो रास्ता रह गया, नदी समुद्र पानी रह गया। हम एक ट्रायंगल में खड़े हुए हैं जिसका नाम है कोणार्क। आपको पुरी में जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने के लिए मिलेगा, कोणार्क में सूर्य मंदिर, भुवनेश्वर में शिव जी का मंदिर, लिंगराज मंदिर दर्शन करने के लिए मिलेगा। कोणार्क मंदिर को ट्रायंगल में बना गया है, इसीलिए इसका नाम है कोणार्क। కోనారక్. जय सूर्य। ఇంకా వర్షం పడుతుంది బ్రో. సో ఇంక ఇప్పుడు హెల్మెట్కి పెట్టలేము, కెమెరా లోపల పడేయాల్సిందే పూరి దాకా. చెక్ 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 చెక్. పూరి జగన్నాథ్ టెంపుల్కి అయితే వచ్చేసాం బ్రో. దర్శనం కూడా అయిపోయింది. ఇప్పుడు వర్షం తగ్గింది కొంచెం, మళ్ళీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందో తెలీదు. సో కొద్దిగా ఊపిరి పీల్చుకుందామని రెయిన్ కోట్ కూడా తీసాను. ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి చిలక లేక్ మీద వైజాగ్ సైడ్ వెళ్ళాలి. త్రీ 300 కిలోమీటర్స్, 6 hours 25 minutes చూపిస్తుంది. విల్ సీ. ఈ మంతే జగన్నాథ్ రథయాత్ర. రథాలు కూడా రెడీ చేస్తున్నారు. ఆ వెనకాల ఇందాక మనం చేసిన టెంపుల్. ఓకే, ఇటే బ్యాక్ సైడ్ వెళ్ళాలని చూపిస్తుంది. అదే రథం, అది రుక్మిణిదే, సారీ సుభద్రది. ఆ లెఫ్ట్లోది జగన్నాథ్ మందిర్. రోడ్స్ చాలా బాగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, ఫార్ బెటర్ దాన్ ఆంధ్ర. ఇక్కడ ఇంకో వింత ఏంటంటే, అన్నదానం అంటే నీకు ఫ్రీగా బెటర్. లైక్ భోగ్ అని ఉంటుంది, ప్రసాదం. స్వామివారికి ఏదైతే పెడతారో అదే నీకు అమ్ముతారు. ప్రిపరేషన్ అది ఆ బ్యాక్ సైడ్ ఒకటి ఉంటుంది ప్లేస్, అక్కడ చేస్తారు. అండ్ ఆల్సో దీన్ని ఏమంటారు, నాకు ఒకసారి ఎవరో చెప్పారు, పూరి జగన్నాథ్లో కృష్ణుడికి ఆకలి ఎక్కువ, వెరైటీస్ కూడా ఎక్కువ కావాలి అని. సో సేమ్ వెజ్లో చాలా వెరైటీస్ ఉంటాయి అవి ఇక్కడికి వస్తాయి. స్వీట్స్, కర్రీస్, చాలా టైప్స్ ఆఫ్ వెరైటీస్ చేస్తుంటారు. ఇదే జగన్నాథ్ మందిర్. ఆ ముందుకు వెళ్ళి ఫోటో తీద్దాం, అక్కడి నుంచి పర్ఫెక్ట్గా వచ్చుద్ది.
ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి చిలకలోకి వెళ్ళి చిలకలాగా ఎగిరిపోవాలి బోట్లో అవతల ఒడ్డుకి. ఫెర్రీలో వెళ్తే మనకి ఆల్మోస్ట్ 70 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ తగ్గుద్ది. అండ్ ఆల్సో దీన్ని ఏమంటారు, లైక్ నీకు ఈ రోడ్లో 70 కిలోమీటర్స్ అంటే ఈజీగా 2 hours పట్టుద్ది, 1.5 to 2 hours. అందుకు అక్కడ ఏ బొక్క ఉందరా నీ బొక్కన అక్కడొక అమ్మ. ఇంకెక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడం. గూగుల్ మ్యాప్స్లో మనం బైక్ అనే ఆప్షన్ పెట్టేసరికి సందులు గొంతులు అన్నీ చూపించాడు. ఆ సందులు లిటరల్లీ ఎలా ఉందంటే బండి సరిపోయేంత ఉంది. మనకు బండికి పక్కన 2 జెర్రీ క్యాన్లు, లగేజ్, ఇంత ఎక్సెస్ ఉంది. వాటినంతా ఏం చేస్తావు మరి? సో వేరే అన్నాడు సందులో నుంచి వచ్చి, అన్న ఈ సందులో నీ బండి పట్టదన్న, మెయిన్ రోడ్లో నుంచి వెళ్ళంటే, అన్న గూగుల్ మ్యాప్స్ ఇదే చూపిస్తుంది అన్న అంటే, బైక్ ఆప్షన్ పెట్టుంటావు, బైక్ ఎత్తేసి కార్ ఆప్షన్ పెట్టు వెళ్ళిపోద్ది అన్నాడు. బైక్ ఎత్తేసి కార్ ఆప్షన్ పెట్టాను, ఇప్పుడు అది కరెక్ట్గా చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఇంకటి నుంచి వెళ్ళిపోవడం. ఇది ఇలా కొడుతున్నారు కదా, మొక్కుకుంటారు కొంతమంది, మాకు ఇది జరిగితే జగన్నాథ్ వరకు పూరి దర్శనం వరకు మా ఇంటి నుంచి ఇలా కొట్టుకుంటూ వస్తామని. హారతి వచ్చింది బ్రో. అది చూడు బ్రో, మొత్తం మబ్బు పట్టుంది, వర్షం పడుతుంది. దాని కిందకి వెళ్ళి నేను కెమెరా తీసి ఇంకా లోపల వేసేస్తాను. రెయిన్ కోట్ కూడా వేసుకోవాల్సి వచ్చేలా ఉంది, అది కూడా వేసుకొని ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోవడమే. దిస్ విల్ బి ద లాస్ట్ వీడియో ఫర్ టుడే, లైక్ రికార్డింగ్లో. మళ్ళీ చిలకలకి ఎక్కక చూద్దాం వర్షం పడకుంటే. చెక్ ఇదే బ్రో ఫెర్రీ సర్వీస్ చిలకలకి. వర్షం అయితే పడుతుంది కానీ చినుకులు పడుతుంది, అందుకని తీసాను. మళ్ళీ లోపల పెట్టాల్సి వచ్చింది. ఇప్పుడు దీంట్లో నుంచి అటు సైడ్కి వెళ్తే ఒక 2 hours టైం తగ్గుద్ది మనకి. చూద్దాం. కార్స్, బైక్స్ ఏమన్నా దీని మీద నుంచి. ఎదురు బోట్ కనిపిస్తుంది కదా బ్రో, దాంట్లో కూడా వెళ్తాయి బైక్లు, ఈ ఫెర్రీలు కూడా వెళ్తాయి. కాకపోతే అది కొంచెం రిస్కీ మన బండికి. చిన్న చిన్న బైక్స్ అయితే ఓకే, కానీ మన బైక్ మాత్రం చాలా రిస్క్, అది వెయిట్ ఎక్కువ. అందుకని ఫెర్రీ కోసం 1.5 hour వెయిట్ చేసాం. 2:30కి వచ్చాం, 4కి ఫెర్రీ స్టార్ట్ అవుతుంది, అంటే 4 hours వెయిట్ చేసాం. స్టార్ట్ చేశాడు బ్రో ఫెర్రీ. ఇప్పుడు బస్సు కూడా ఎక్కించాడు ఫెర్రీలో. ఇది ఎక్కడ తోలుతుందండి బోర్డర్ నీకు? జమ్మూ కాశ్మీర్. లే ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి అటు 20 కిలోమీటర్లు అంత వెళ్తారు. కష్టపడుతుంది బోటు వెనక్కి రావడానికి. వాటిలో కూడా బైకులు తీసుకుని వెళ్తారు. వస్తుంది ఇక అటు సైడ్ ఒక బోట్ వస్తుంది ఇప్పుడు బ్రో. బైకులన్నీ నార్మల్ బోట్లో పడుతుంది. అయ్యో బైక్
నీకు ఎగిరి ఎగిరి అలుపు రావట్లేదేమో బ్రో. మీ అమ్మ ఎగురుతానే ఉంది కానీ ముందుకెళ్ళట్లేదు ఎదురుకొచ్చే గాలి వల్ల.